morning, dear students. Today I will start teaching Python. So first of all, I will give some basic concepts related to Python. What is Python? What are the variables, data types, okay, keywords used in Python, and then how it executes. Okay, how to install Python, how to understand the language for Python. All these things are there. So demand has come from CBSE schools children to start teaching Python also. Okay, so let us see what is Python first of all. Okay, so Python programming language is a high level programming language. Okay, created by Guido van Rossum in 1989 and was released in 1991. Okay, then Python programming is basically web application and data science and machine learning. Now web application is basically related to the field of web development, designing, web designing and all. And data science and machine learning children are the most demanded field in today's world. More than 40% of jobs are vacant related to data science and machine learning. Okay, and Python is supporting that. So something I am telling about the history of Python. Now coming to some features of Python. What are the notable features of Python? Okay, Python uses an elegant syntax, making the programs to write easier and read and understand. Okay, a syntax in Python, it means that syntax in Python is not complicated. It is easy to understand, read, okay, to implement. Python is an easy to use language that makes it simple to get the program working. Then Python runs anywhere. Anywhere means on any operating system like Mac, OS, Windows, Linux, Unix, everywhere. And it costs nothing to download and install Python. From Google you can search python.org/download and download the latest version of Python. Then the IDLE cell will come. In that you can start writing your programs. Then some unique features related to Python. A variety of basic data types are available in Python. Okay, for numbers, floating data type, complex, unlimited integers, strings are also there, lists and dictionaries are there. Okay, Python also supports catching the exceptions very easily. है ना, एक्सेप्शन मीन्स रन टाइम एरर भी बहुत इजीली कैच हो जाता है. डेटा टाइप्स आर वेरी डायनेमिक इन नेचर. ओके, they support the values in different ways. All the values are supported by the variables and the data types. Okay, so that I will show you practically कैसे होता है, practically show करेंगे. Now Python interprets the program. ओके, उसके पास इंटरप्रीटर होता है. जैसे कि सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पास कंपाइलर या इंटरप्रीटर होता है. सो पाइथन इज हैविंग इंटरप्रीटर. सो इंटरप्रीटर का वर्क क्या होता है? इट विल कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज. ओके, नाउ कमिंग टू द पाइथन फंडामेंटल्स. Okay, so what are the fundamentals? Means the basic terms and terminologies used in Python like variables, statements, comment lines, keywords, identifiers, data types, operators, input output functions, all are the basic fundamentals. तो पहले variables क्या होता है? That you have to understand. What is a variable? Okay, so in general variable को कैसे define करते हैं? Variable is a named memory location. Means variable is a term which is used to store any value. Okay, variable एक ऐसा term होता है जो कि value store करता है. ठीक है, but unlike C++, Java, variables को पहले ही data type नहीं देना होता है Python में. When you store the value, जब value store करोगे, then Python will automatically take the data type of the variable. For example,
हम लोग लिख दिए s इक्वल टू 15, ठीक है। उसके बाद मान लो इसको प्रिंट करना है, तो इन पाइथन वी विल राइट प्रिंट s। तो जैसे तुम लिखे ना s इक्वल टू 15, तो 15 क्या है, इंटीजर है, तो पाइथन अपने आप समझ जाएगा, इट विल अंडरस्टैंड ऑन इट्स ओन दैट द डेटा टाइप फॉर s विल बी इंट। ओके, ये पाइथन का प्लस पॉइंट है। उसी तरह से हम लोग सेम वेरिएबल नेम तो किसी भी डेटा टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। तो सपोज आई वांट टू स्टोर सम स्ट्रिंग, सो आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, s इक्वल टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, उसके बाद इसी तरह से प्रिंट s लिख दो, प्रिंट s, एंड नो सेमीकोलन इज यूज्ड टू एंड द लाइन, लाइक जावा में जैसे हर एक लाइन के बाद सेमीकोलन लिखते हैं, इसमें सेमीकोलन लिखने का जरूरत नहीं है। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज वी कैन डू दैट ऑल्सो। ओके, जैसे लिख दिए x, y, z इक्वल टू, अब वैल्यूज लिख दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर कॉमा से सेपरेट कर दो, मशीन लर्निंग, ठीक है। ऐसे 2 वैल्यू और 3 वेरिएबल लिए हैं z, तो कुछ और वैल्यू ले लो, पाइथन, ऐसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो AI विल बी स्टोर्ड इन x, ML विल बी स्टोर्ड इन y, एंड पाइथन विल बी स्टोर्ड इन z, एंड यू कैन प्रिंट देम सेपरेटली। ओके, message, if you want to write, you can write message also, like x is equal to, and put comma and then write x. Similarly, you can print y and z also, y equals to comma y, then print z equals to comma z, ऐसे यूज कर सकते हो। So it will print the values of x, y and z. And you can also store same value to the variables, like x equal to y equal to z equal to apple, like this। ऐसे मान लो लिख रहे हैं x equal to y equal to z equal to AI, so same value will be stored in x, y and z, all the 3 variables। okay, ये हो गया। नाउ कमिंग टू पाइथन स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सोर्स कोड दैट एन इंटरप्रेटर कैन रीड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, विच इज अंडरस्टूड बाय द इंटरप्रेटर एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर। इन पाइथन और स्टेटमेंट कैन बी सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, एक लाइन का हो सकता है और मल्टीपल लाइंस का भी हो सकता है। ईच स्टेटमेंट इज यूज टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, हर एक स्टेटमेंट का तो कुछ ना कुछ आउटपुट होगा ही। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन आर असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट मतलब इक्वल टू साइन, जिसके हेल्प से हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं वेरिएबल में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे इफ, एलिफ होता है, एल्सिफ के जगह में जैसे एल्सिफ होता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, पाइथन में एलिफ होता है। लूपिंग स्टेटमेंट्स हो गया, मतलब लूप्स फॉर वाइल। तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल है, ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। देखो यहाँ एरो मार्क लगाते हैं, s इक्वल टू 15, दिस इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट मीन्स इट विल हैव ओनली 1 लाइन। और मल्टी लाइन स्टेटमेंट में क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना है। टू एक्सटेंड द स्टेटमेंट टू मोर देन 1 लाइन वी कैन यूज लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, स्लैश को, बैक स्लैश को। We can use the line continuation character and we can divide a long statement into multiple lines. For example, क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लो लिखे s इक्वल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लिख दिए। इसके बाद हम एक स्लैश दे रहे हैं, तो यहां से लाइन सेपरेट हो जाएगा। फॉर क्लास 7 to 10, ठीक है। फिर यहां पर एक और स्लैश दे दिए, फिर सब्जेक्ट पाइथन, ऐसे लिख दिए। और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास यहां क्लोज किए, ठीक है। सी इट केयरफुली, इसको हटा देते हैं, दिस वन में विल कंफ्यूज यू, दे आर मिक्सिंग अप। देखो ऐसे लिखेंगे लाइन, एस इक्वल टू डबल कोट में AI, फिर लाइन सेपरेट कर दिए, फॉर क्लास 7 to 10, फिर लाइन सेपरेट कर दिए बैक स्लैश लगा के, और फिर सब्जेक्ट पाइथन, फिर क्लोज किए। तो एस में ये सब स्टोर हो जाएगा, बट विथ अ
बट बाई सेपरेटिंग द लाइन, लाइन कंटिन्यूएशन स्टेटमेंट यूज करके। ठीक है, इसके बाद आता है कमेंट लाइंस। तो पाइथन कमेंट्स क्या होता है? कमेंट लाइंस होता क्या है? कमेंट लाइंस आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, दे डोंट एग्जीक्यूट अलॉन्ग विद द प्रोग्राम, दे आर ओनली यूज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट होता है और मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखा जाता है? विद द हेल्प ऑफ हैश साइन, एक लाइन का कमेंट। ठीक है, द कमेंट शुड एंड इन वन लाइन। ऐसे तो हम लोग मल्टीपल लाइंस यूज करना है तो ऐसे बार बार हैश लगा के हर एक लाइन में हम लोग बहुत सारा लाइंस का कमेंट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा और मल्टीपल लाइंस कमेंट लिखने का यूज और एक तरीका है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल सिंगल कोट्स भी होता है और ट्रिपल डबल कोट्स भी होता है। ठीक है, जैसे ये ऐसे ट्रिपल कोट्स लगा के लिखना होता है। एग्जाम्पल भी लिख के दिखा देते हैं। जैसे ये ट्रिपल कोट्स लगाए ना, अब इसके बाद कुछ कमेंट लिखना है। नाउ आई हैव टू राइट समथिंग, दिस इज पाइथन फॉर क्लास 7 to 10 और फिर यहाँ ट्रिपल कोट्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3 लाइन का कमेंट, दिस इज पाइथन फॉर क्लास 7 to 10। ट्रिपल कोट्स, ट्रिपल सिंगल कोट्स भी हो सकता है, ट्रिपल डबल कोट्स भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पाइथन कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? कीवर्ड्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। कीवर्ड इज अ टर्म और रिजर्व्ड वर्ड विच इज मेंट फॉर सॉल्विंग सम पर्टिकुलर पर्पस इन द प्रोग्राम। सो हियर आल्सो द मीनिंग इज सेम ओनली। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या क्या होता है? देखो, कीवर्ड्स का हम लिस्ट भी जनरेट किए हैं यहाँ पर। कैसे लिखे हैं? ये पाइथन का हम सेल जो है ओपन कर लिए हैं, आइडियली सेल जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखे हैं, इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट कर लिए कीवर्ड को, फिर कर दिए प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। KW लिस्ट मतलब कीवर्ड लिस्ट इनबिल्ट है, तो ये सारा लिस्ट प्रिंट कर देगा। देखो, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, async, await, break, class, continue, def, del, elif, else, except, finally, for, from। ठीक है, global, if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, yield, सब कीवर्ड डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो कीवर्ड्स का मीनिंग वही होता है, दे आर यूज्ड टू सॉल्व सम पर्टिकुलर पर्पस इन द प्रोग्राम। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिफायर्स पे। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर्स आर अ नेम गिवन टू आइडेंटिफाई एंटिटीज। एंटिटीज कैसे? कौन सा एंटिटी को आइडेंटिफाई करेगा? लाइक क्लास, फंक्शंस, वेरिएबल्स, ये सब होता है। दे हेल्प टू डिफरेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से डिफरेंशिएट भी करता है। सम ऑफ द रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर, ये जानना जरूरी है। रूल्स क्या होता है? तो रूल्स लगभग सेम ही है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे ही। आइडेंटिफायर नेम इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों को अलग अलग सेंस करता है, दे आर नॉट सेम। जैसे कैपिटल लेटर में कुछ लिखोगे AI तो ये अलग होगा, और AI स्मॉल लेटर्स में लिखोगे तो ये अलग होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड, मतलब तुम किसी भी कीवर्ड का नेम को जो है आइडेंटिफायर नेम नहीं बना सकते हो, दैट इज रॉन्ग। ओके, देन an identifier name can be a combination of letters, numbers और underscores। letters भी हो सकता है मतलब अल्फाबेट फ्रॉम A to Z, नंबर्स भी हो सकता है डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, और अंडरस्कोर भी हो सकता है आइडेंटिफायर का नेम में। लेकिन आइडेंटिफायर नेम कैन बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर ओनली। अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से ही शुरुआत होना चाहिए, नंबर से शुरुआत नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर का। ठीक है, An identifier name cannot contain spaces or special characters। blank space और special characters contain नहीं कर सकता है। special characters क्या हो सकता है? जैसे कीबोर्ड में देखते हो ना, @ सिंबल, क्वेश्चन मार्क, कोलोन, प्लस, माइनस, जितना सिंबल्स होता है, अंडरस्कोर एक छोड़ के बस बाकी सारा सिंबल्स जो है स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। तो स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफायर नेम में नहीं होता है। अब देखो, कुछ आइडेंटिफायर्स का नेम लिखते हैं, जैसे हम लिख दिए एज,
तो ये वैलिड है। हम लिख दिए अंडरस्कोर नेम, ये भी वैलिड है। लेकिन अगर हम लिख देंगे डॉलर नेम तो ये इनवैलिड है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये सब गलत है। स्पेशल कैरेक्टर बीच में भी डालोगे तो भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं डेटा टाइप्स पे। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स आर बेसिकली मेंट फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। हालांकि पाइथन में तो डेटा टाइप पहले मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेटा टाइप से वही पता चलता है व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। ठीक है, किस तरह का वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, एरे। ठीक है, ये सब। तो पाइथन ऑल डेटा टाइप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का टर्म में रिप्रेजेंट होता है। ईच ऑब्जेक्ट और वैल्यू हैज अ डेटा टाइप विच कैन बी म्यूटेबल और इम्यूटेबल इन नेचर। अब ये समझना जरूरी है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड वंस क्रिएटेड। अगर म्यूटेबल होगा नेचर में तो वो चेंज हो सकता है क्रिएट होने के बाद, लेकिन इम्यूटेबल होगा तो चेंज नहीं हो सकता है। तो वही लिखा हुआ है ना, एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैनॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट इज क्रिएटेड। ठीक है, सो पाइथन सपोर्ट्स वेरियस डेटा टाइप्स, बहुत सारा डेटा टाइप सपोर्ट करता है, जैसे नंबर, सीक्वेंस, सेट्स और मैप्स। ठीक है, बहुत सारा डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल। तो इसमें कुछ म्यूटेबल होता है, कुछ इम्यूटेबल होता है, तो उसका भी लिस्ट बता देते हैं तुम लोग को थोड़ा सा। देखो, नंबर, सीक्वेंस, सेट्स और मैप्स, आउट ऑफ विच लिस्ट्स, डिक्शनरीज एंड सेट्स आर म्यूटेबल। और उसके बाद इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और टपल आर इम्यूटेबल। ठीक है, तो ये सब इम्यूटेबल है कुछ कुछ। अब हम लोग डेटा टाइप्स में कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के साथ। ठीक है, पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को जाते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन पाइथन, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू होल्ड न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक वैल्यूज मतलब एनी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू। नंबर, पाइथन सपोर्ट्स 3 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, 3 तरह का न्यूमेरिक डेटा टाइप सपोर्ट करता है, इंटीजर, बुलियन और फ्लोट। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर, इंट डेटा टाइप कैन होल्ड ऑल द इंटीजर वैल्यूज दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। होल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है लेकिन खाली होल नंबर्स। ठीक है, बुलियन, बुलियन इज यूज्ड टू स्टोर ओनली बुलियन वैल्यूज दैट इज ट्रू और फॉल्स। और पाइथन में बुलियन, ट्रू और फॉल्स को, जो बुलियन वैल्यूज होता है उसको कैपिटल टी और कैपिटल एफ से लिखा जाता है। और फिर फ्लोट, इट होल्ड रियल नंबर्स, रियल नंबर्स मतलब डेसिमल नंबर्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेसिमल साइंस। ओके, and sometimes scientific notations like capital E और small e indicating the power of 10। ठीक है, जैसे हम लोग लिखें 3.5 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, देखो लिखते हैं 3.5 इंटू 10 टू द पावर 2। तो इसको पाइथन में ई का टर्म्स में कैसे लिखेगा? 3.5 E2। E2 लिखने का मतलब इंटू 10 टू द पावर 2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 350.0। ठीक है, तो ये होता है, समझे? अब इसका कुछ एग्जांपल्स भी हम तुम लोग को दिखाते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करके। जस्ट अ सेकेंड। चलो लेट अस सी। Suppose I have written I want to increase the
font size a bit, just a second. अब सपोज करो हम कोई वैल्यू स्टोर किए, num इक्वल टू 10, ये हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, इसका डेटा टाइप पता करने के लिए कैसे करेंगे, लिखेंगे टाइप, ब्रैकेट में लिखेंगे num, तो ये क्या आंसर देगा, देखो क्लास इंट, अपने से पता लगा लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करके, ठीक है। ये टाइप जो है बता देगा कि तुम्हारा डेटा टाइप जो है, वैल्यू जो स्टोर हुआ या जो वेरिएबल है नम, उसका डेटा टाइप क्या है। तो लिख दिया ना क्लास इंट, यू कैन जूम द वीडियो एंड रीड इट, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बुलियन वेरिएबल स्टोर करोगे तो जैसे हम लिख दिए के इक्वल टू ट्रू, ठीक है। उसके बाद इसका भी टाइप चेक करते हैं, टाइप और ब्रैकेट में के, देखो तो क्लास बुल, यहाँ पर डेटा टाइप का नाम बुल है, ठीक है। फिर उसी तरह से हम एक और वेरिएबल लेते हैं a इक्वल्स टू 25.3, ठीक है। अब इसका टाइप चेक करते हैं, टाइप a, देखो क्लास फ्लोट आ गया। इसी तरह से हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे पढ़ाई होता है हायर क्लासेस में 11-12 में, x प्लस ए जे, तो ऐसा टर्म को अगर हम x प्लस ए जे में क्या होता है, x और a जो होता है वो वैल्यूज होता है फ्लोट टाइप का, और j जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, मतलब इमेजिनरी नंबर होता है। तो कैसे स्टोर कर सकते हैं, देखो जैसे b इक्वल्स टू हम लिखें 3 + 5j, ठीक है, ऐसे स्टोर कर दिए। अब इसका टाइप पता करते हैं, सेम वे में लिखेंगे टाइप और ब्रैकेट में लिखेंगे b, लिख देगा देखो क्लास कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गया, कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है। तो ये होता है सब न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप हो गया, ठीक है। और इसके अलावा डेटा टाइप्स जो होता है, जैसे सीक्वेंस डेटा टाइप हो गया, सेट्स हो गया, ठीक है ना। सीक्वेंस में आ जाएगा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, सेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो और ऑपरेटर्स, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तो इतना को ट्राई करो। So this much you try, children. So we have seen numeric data types, okay, int, float, boolean, that is bool, and complex type. Next video we will see other data types, lists, tuples, all this, sets, dictionary, and then we will go with operators. Thank you.